This is class 7 Hindi. Lesson 2 Adbhut Graha Prithvi, Amazing Planet Earth. Adbhut Graha Prithvi, Amazing Planet Earth. First let me read the lesson, after that I'll explain. हमारी पृथ्वी सौरमंडल में स्थित 8 ग्रहों में से एक है। यह अन्य सभी ग्रहों से पूर्ण भिन्न और अद्भुत है, क्योंकि केवल यही जीवन की संभावना है, यानी केवल यही भोजन, वायु, जल, उचित तापमान आदि पाए जाते हैं, जो किसी भी प्राणी के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष या केंद्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर गति करते रहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्र पूरी करने में पृथ्वी को 24 घंटों का समय लगता है। पृथ्वी की यही गति दैनिक गति या घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के समक्ष प्रकाशित हो पाता है। इसी के फलस्वरूप पृथ्वी के प्रकाशित भाग में दिन और अंधेरे भाग में रात होती है। सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को एक वर्ष या 365 दिनों को समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण तथा सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। हमारी पृथ्वी सदैव उत्तरी या दक्षिणी छोर से सूर्य की ओर झुकी रहती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का जो भाग या छोर सूर्य की ओर झुका होता है, उस भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है और वहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती है, जबकि पृथ्वी का जो अंश सूर्य से दूर होता है वहाँ शीत ऋतु होती है और दिन छोटे तथा रातें लंबी होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जब पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के निकट होता है धीरे धीरे सूर्य से दूर होता जाता है, तो वह धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है तथा एक सम ऋतु आ जाती है, जब ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड। इसे शरद ऋतु पतझड़ कहते हैं। वही दूसरी ओर जिस भाग में शीत ऋतु होती है, जब वह भाग धीरे धीरे सूर्य के निकट आने लगता है, तो वह धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है तथा एक सम ऋतु आ जाती है, जिसे बसंत ऋतु कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण का यह कर्म निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमें दिन रात, दिन के सभी पहरों आदि का बोध होता है तथा हम अलग अलग ऋतुओं का आनंद उठा पाते हैं। This lesson is written by Bhavani Namairakpam. Adbhut Graha Prithvi, Amazing Earth, Amazing Planet Earth. Earth is one of the 8 planets in the solar system. It is totally different and amazing from all other planets because that is the only possibility of life. That is only food, air, water, proper temperature, etc., which is essential for survival of any living being. All the planets in the solar system revolve around the sun as well as move from west to east at their axis center. It takes the Earth 24 hours to complete one revolution while rotating on its axis.
This motion of the earth is called daily motion or rotational motion. Day and night are caused by the rotation of the earth because the shape of the earth is spherical. By rotating on its axis, half of the earth's surface is illuminated in front of the sun. As a result of this, there is a day in the illuminated part of the earth and night in the dark part. It takes the earth 1 year or 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. This motion of the earth is called rotation. Seasons change due to the rotation of the earth and the position relative to the sun. Our earth is always towards the sun from the northern and southern, and as a result of which the fate of the earth has shifted towards the sun. It is summer in that part, and the days are long and the nights short. Whereas the part of the earth which is always from the sun, there is winter, and the days are short and the nights are long. The part of the earth that is closest to the sun, due to the rotation of the earth, slowly it moves away from the sun. Then there is gradually the heat start decreasing and one evening season comes. When it is neither too hot nor too cold, it is called autumn. On the other hand, the part which has winter season, when there the parts slowly start coming closer to the sun, so there gradually the cold start decreasing and one evening season comes, which is called spring season. The rotation of the earth and the celestial universe continues to do this, because of which we have day and night. There is a sense of all passages of the day, etc., and we can enjoy different seasons. This lesson is written by Bhavini Namairatpam. Now word meanings. Vinna, Vinna, alag, different. Aksha, kendra, exist. Akriti, akar, shape. Chor, sira, corner. Nikat, pass, near. Adbhut, vichitra, amazing. Paribrahman, parikrama, revolution. Andhakar, andhera, darkness. Ansh, bhag, part. Samay, barabar, equal. Now answer the following question. का नंबर 1, सौरमंडल में कितने ग्रह है? हमारी सौरमंडल में 8 ग्रह है। नंबर 2, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति दैनिक गति या घूर्णन गति कहलाती है। नंबर 3, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 1 वर्ष या 365 1/4 दिनों का समय लगता है। नंबर 4, हम दिन रात और ऋतुओं का बोध किस प्रकार करते हैं? पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण का यह कर्म निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमें दिन रात और ऋतुओं का अलग अलग आनंद उठा पाते हैं। नंबर 5, पृथ्वी सभी ग्रहों से किस प्रकार भिन्न है? पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों से पूर्णतः भिन्न और अद्भुत है, क्योंकि केवल यही भोजन, वायु, जल, उचित तापमान आदि पाए जाते हैं। नंबर 6, परिभ्रमण किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। नंबर 7, ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती है? पृथ्वी के परिभ्रमण तथा सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। नंबर 8, पतझड़ किसे कहते हैं? जब ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड, इससे शरद ऋतु या पतझड़ कहते हैं। नंबर 9, वसंत ऋतु कब आती है? जब धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है तब वसंत ऋतु आती है। पेज नंबर 12। नाउ पेज नंबर 12। गा दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची से मिलाइए।
नंबर 1 पृथ्वी धरा, 2 वायु हवा, 3 जल पानी, 4 सूर्य रावि, 5 दिन दिवस, 6 रात रात्रि, 7 ग्रीष्म गर्मी,